Hello children. Today I am taking the first poem from the book Flamingo, and the name of the poem is My Mother at 66. It has been written by Kamla Das. First of all, I would like to give you the introduction of this poem, that My Mother at 66. In this poem, Kamla Das commented on the feeling of pain and anguish one feels for the aging parents. हमारे साथ जनरली होता है, हम अपने पेरेंट्स के साथ में वाइल वी आर ग्रोइंग अप द सेम वे, हमारे पेरेंट्स की एज भी ग्रो कर रही होती है हमारी तरफ, बट वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर इट, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दैट साइड दैट दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड they need our love, care and concern. So the days are going on and each and everyone is getting busy in their lives, so that the situations are going to be felt by the parents as well, but they don't express. In this poem, there is a heartly feeling of a child that he or she is getting for her or his parents while they are seeing that their parents are getting old, and they are having a very beautiful and very touching feeling for them. So in this poem, I would like to explain it word to word, and will try to give you a good explanation that would be very much helpful for you. So now, first of all, we are going to start with the poem that aging is a natural process. Each and everyone who has taken birth, he will grow up. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? क्या हमने सोचा, हम लाइफ लॉन्ग अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पर हमने ये सोचा कि क्या हमारे पेरेंट्स भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू शो, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस फॉर एनीथिंग. So here Kamla Das is saying that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, once she was returning back to Cochin and she is coming here to stay and to spend some time with her mother, who is getting a little bit aged now. She is in aging process, and while she is coming back, she is in her car, she is driving to the airport, she will have to reach to the Cochin, and where her mother was sitting besides of that driving seat. So this is the scenario that the poem is running on the way. I saw my mother besides me. So the poetess is saying that my mother is sitting just besides me. And what she was doing in that time, because she is a little bit aged one, old one, so she is feeling a little bit drowsy, sleepy, and then she was snoring at that time, open mouth, her face ashen. Ash is called राख, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो जब एक ग्लो होता है, while you are young, you are in your youth period, हमारे फेस पर एक ग्लो होता है, but while you are टर्निंग ओल्ड, हमारे फेस का वो ग्लो कैसा होता है, डल होने लगता है, और वो हमारे फेस पर जो रिंकल्स आने लगते हैं, या जो फेस का एक जो कलर होता है वो डल होने लगता है, पेल होने लगता है. तो जो एक ब्राइटनेस होती है हमारे कलर की, जो पिंकनेस होती है, वो डल हो जाती है. और यहाँ उस मदर के एज को लेकर ये बताया है कि उनका जो फेस था, दैट इज टर्निंग लिटिल बिट एशियन. तो अपनी मदर को देखती है, ऑब्जर्व करती है, जो थोड़ा सा नींद में है, थोड़ा सा ड्राउजी हैं, उन्हें झपकी आ जाती है, उनका मुंह थोड़ा सा खुला होता है टू टेक ब्रीद इन, एंड हर फेस वॉज एशियन, और उनके चेहरे की जो ग्लो होती है वो एकदम डल हो जाती है, ऐसा राख जैसा बुझा हुआ चेहरा उनका नजर आता है, लाइक दैट कॉप्स, एंड रियलाइज विथ पेन. और उसको उस फेस को देखकर, उनके उस अपीयरेंस को देखकर काफी पेन होता है. वो रियलाइज करती है कि किस एज को अब उसकी मदर जो है वो फेस कर रही हैं, क्या क्या फिजिकल अपीयरेंस जो है अब उसको वियर्ड नजर आ रहे हैं, जो उसने कभी ध्यान नहीं दिए थे. एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. जब वो अपनी माँ को देख रही होती है, शी वॉज फीलिंग हरसेल्फ लिटिल बिट ग्रूमी, ग्रीफी, और उस उदासी में अचानक से वो अपनी नजरें फेरती है और विंडो की तरफ जब बाहर देखती है, सो व्हाट वी यूज्ड टू सी, जब हम कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कार आगे बढ़ती है और जो पेड़ जो होते हैं उनकी लेन हमें पूरी पीछे भागती हुई नजर आती है. तो ऐसे ही पोइटस की नजर जब पड़ती है उन ट्रीज की तरफ, तो लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. तो उसको वो जो यंग ट्रीज होते हैं, जो लेन ऑफ ट्रीज होती है, वो उसको पीछे की तरफ भागती हुई नजर आती है. एंड द मेरी चिल्ड्रन, मेरी फॉर द हैप्पी चिल्ड्रन, और देखती है कि वहां ग्राउंड में कुछ बच्चे अपने घरों से दौड़ते हुए निकल रहे हैं, दे वॉन्ट टू प्ले. एंड आफ्टर दैट ये दोनों चीजें जो हैं कॉन्ट्रेरी उसको अपीयर होती हैं अपनी मदर की सिचुएशन से. वन साइड देयर इज अनहैप्पी साइड, एंड वन साइड देयर इज अ लाइफ, देयर इज joyfulness, there is happiness of the life that she could see. The merry children
spilling out of their homes, but after the airport security check, अब वो इन सारे चीजों को, विजन को देख रही है, उन दोनों से कॉन्ट्ररी एक्सपीरियंस को गेन कर रही है, जहां एक तरफ शी इज लुकिंग एट द हैप्पी साइड ऑफ लाइफ और दूसरी साइड अपनी मदर की तरफ देखकर उसको ये रियलाइज होता है कि वाइल द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, कैसी सिचुएशन हो जाती है एक ह्यूमन की, और कैसे वो एक सफरिंग एज उनकी नजर आती है, जहां साफ नजर आता है कि दे आर ऑल्सो सफरिंग, दे नीड लव, केयर एंड कंसर्न लिटिल बिट मोर देन बिफोर, बट शी इज फेल्ड, क्योंकि अब जहां उसको जाना है कोचीन, उसके लिए वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और वहां जाकर वो सिक्योरिटी चेक करवाती है, यानी जो हमारे लगेज वगैरह का चेक इन होता है, खुद का जो चेक इन होता है वो प्रोसेस करने के लिए वो तो अंदर चली जाती है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और उसकी मदर वहीं बाहर एयरपोर्ट पर कुछ ही यार्ड्स की दूरी पर उसको खड़ी है सी ऑफ करने के लिए। उसकी नजर अपनी मदर के ऊपर पड़ती है। वो जो उसने एक कार में एक सीन देखा था अपनी मदर के एज को लेकर, इट वॉज जस्ट लाइक, वो कंपेयर करती है कि हर मदर इज वेरी नियर टू डेथ, शी इज अबाउट टू डाई, उस एज पर है वो, एनी टाइम शी कैन बी सेपरेटेड, एनी टाइम शी कैन बी vanished forever, she can die any time। तो वो जो सारी फीलिंग्स होती है, उन फीलिंग्स के साथ में वो वहां पर उसकी तरफ पलट कर देखती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वो पलट कर अपनी माँ की तरफ बोलती है कि मैंने फिर से देखा, व्हेन पेल एंड लेट विंटर्स मून, वो कैसी नजर आ रही थी, कलरलेस, डल, वीक, और हैविंग नो एनर्जी और नॉट एनी होप फॉर लाइफ, वो उसे ऐसी ही डल नजर आ रही थी जैसे विंटर में मून होता है, दैट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। और सेम वही सिचुएशन उसे अपनी मदर की नजर आ रही होती है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, हु इज एजेड नाउ, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उसे वही एक पेन फील होता है, एक मीन्स पेन, वो पेन फील होता है, बिकॉज शी इज नॉट सो मच श्योर दैट वाइल शी इज कमिंग बैक शी वुड बी एबल टू सी हर मदर अगेन, सो इट वॉज नॉट एनी श्योरिटी, देयर वॉज नॉट एनी सर्टेनिटी फॉर दैट, एंड माई चाइल्डहुड फियर, और ये डर जो उसको एक बचपन में हमें डर होता है हमारे माँ बाप को खो देने का, नाउ शी इज गोइंग टू रियलाइज दैट स्टिल शी इज हैविंग द सेम पेन, शी डजंट वांट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, एंड नाउ while she is having that kind of feeling that any time she can be separated, वो कुछ कर नहीं सकती है, she is failed, but could have that pain in her heart that don't compelling her to leave her mother in this situation, but her responsibilities are calling her back to her job, so she'll have to rush, and then having a fake smile on her face, she's looking at her mother's side and just saying ki see you soon mom, I will see you soon, she is going to give her a commitment that soon we are meeting again, soon I will come back and we will meet again, and this way she says, amma, all I did was, amma, I will come back, and she is saying with a smile and a smile and a smile, because it could be the last visit that she is having with her mother, and she wanted to be separated from her with a greater smile, and the smile is a sign of hope. So with this hope that soon they will meet again, she is having a smile and she is going to say goodbye to her mom. So this is a poem that is full of emotion, full of feelings, and it is giving a moral to all the students, all the children, or all the human, that yes, our parents are giving us, they are going to dedicate their life for all the children, and the children are not getting aware of it, that while the parents are growing aged, they are in their aging process, they also need love, care and concern from us. So it is our responsibility that we should not avoid it, and even we should try to do something that could give them happiness as well. So this is the poem and its explanation that will definitely help you. I hope that you would like this video. Thank you.